میں اگر آپ سے کہوں وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا، اور جو چیز آپ وقت کہہ رہے ہو وہ شاید وقت تھا ہی نہیں۔ سوچو، 0 سیکنڈ، 0 اسپیس، 0 ڈائریکشن، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آگے نہ پیچھے۔ اب ایک اور شوق، سائنس کے مطابق یونیورس کی عمر 13.8 ارب سال ہے، اور جو یونیورس کا سائز ہمیں پتا ہے وہ 93 بلین لائٹ ایئرز کے آس پاس، اور اللہ جس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ اور جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے سوچ کو ریسیٹ کر دے گا۔ آپ کو احد اور سمد کا مطلب صرف سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اس کو اندر سے فیل کریں گے۔ کبھی رات کو آپ کا دماغ یہ سوال پوچھتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ ٹائم اور اسپیس سے پہلے کیا تھا؟ اور پھر دل میں ایک سوچ سے آ جاتی ہے۔ کئی لوگ جب بگ بینگ، سنگولیرٹی، کوانٹم تھیوریز کو سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے شاید اللہ کا کانسیپٹ سائنس سے کلیش کر رہا ہے اور ڈاؤٹ سٹارٹ۔ لیکن پہلی بات، قرآن صرف ایک سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں، قرآن پورے انسانیت کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور سائنس بھی 100% فائنل نہیں، ماڈلز اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے برین کو ہر چیز کو ٹائم لائن میں رکھنے کی عادت ہے، کل، آج، پرسوں، لیکن اللہ ٹائم کا حصہ نہیں، اللہ ٹائم کو بنایا ہے، ٹائم کا کریٹر ہے۔ اور ادب والی بات، آج ہم اللہ کی ذات کو امیجن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا اللہ نے ہمیں قرآن میں اور جتنا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں حدیثوں میں بتایا۔ ویڈیو کے اینڈ تک رہو، کیونکہ عہد اور سمجھ کو سمجھ گئے نا تو آپ کی نماز، آپ کی دعا، آپ کا ٹرسٹ اور اپ گریڈ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو، غور سے سنو، یہ کوئی نارمل کہانی نہیں، یہ ابتدا کا قصہ ہے۔ ایک وقت تھا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، صرف اللہ، بے نیاز اور بے مثال۔ سوچئے، نو ٹیمپریچر، نو لائٹ، نو ساؤنڈ، نو مومنٹ۔ کیونکہ یہ سب کریشن کی چیزیں ہیں، اور ابھی کریشن ہی ہوا نہیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ کچھ لوگ یمن سے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہمارے پیارے نبی نے جواب دیا، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پھر اللہ نے ہر چیز کی تقدیر کا لکھا ہوا فیصلے کو لکھوایا، اور اس کے بعد اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ یعنی ہمارے اصلی سوال کا جواب، کائنات میں جو بھی بنا اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور یہاں ایک مائنڈ بلوئنگ نمبر، صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اللہ نے تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یونیورس کا تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا۔ اب سوچو، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں چیر چاہیے، ہمیں ریسٹ چاہیے، لیکن اللہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے۔ عرش بھی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، عرش اللہ کی میجسٹی، بڑپن، عہدے کو شو کرنے کے لیے ہے، تاکہ بندہ سمجھے ہم کتنے چھوٹے اور میرا رب کتنا عظیم۔ اور کچھ روایتوں میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی عظمت کا اندازہ آتا ہے کہ اس کے کان سے کاندھے تک کا سفر 700 سال ہے۔ سوچو، 700 ایئرس۔
ये बात हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाती है। अभी मैं आपको 2 स्टेप्स में बताता हूँ कि अल्लाह बिफोर क्रिएशन का मतलब क्या है। स्टेप 1, अल्लाह ने कुन यानी हो जा कहा और दुनिया हो गई। मतलब अल्लाह जब चाहे चीजों को बना सकता है, एग्जिस्टेंस में ला सकता है। इसलिए अल्लाह पहले क्या कर रहा था? इस सवाल का प्रॉब्लम ये है, ये पहले वर्ड टाइम में आता है और अल्लाह टाइम से परे है। और एक हदीस का मतलब है टाइम को गाली मत दो, क्योंकि टाइम का निजाम अल्लाह के हाथ में है। यानी अल्लाह टाइम को चलाता है और अल्लाह टाइम में नहीं आता। अब आओ सिंपल साइंस को टच करते हैं। बिग बैंग का मतलब यानी बूम हुआ, बस सिंपल वर्ड्स में, यानी यूनिवर्स एक बहुत गर्म और बहुत बहुत बड़े धमाके से हुआ। आज भी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, एक्सपैंड हो रही है और इस एक्सपेंशन को हम इनडायरेक्ट प्रूफ से समझते हैं। और यहाँ एक स्मार्ट पॉइंट, साइंस स्पेस और टाइम की बात करता है। स्पेस और टाइम कनेक्टेड है, जहाँ स्पेस का फ्रेम आया वहाँ टाइम का फ्लो आया। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था? कभी कभी ऐसा होता है जैसे नॉर्थ पोल से और नॉर्थ किधर है, आप जितना नॉर्थ जाओ नॉर्थ पोल पे आके नॉर्थ खत्म। इसी तरह बिफोर टाइम का वर्ड और टाइम ही क्रिएशन का पार्ट है, तो बिफोर क्रिएशन को इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्रिएशन और क्रिएटर का मतलब क्लियर कर देता हूँ। साइंस हाउ बताती है प्रोसेस, दीन हु बताता है क्रिएटर। आप कार बना सकते हो, लेकिन आप लोहे के एटम फ्रॉम नथिंग नहीं बना सकते। हम असेंबल करते हैं और अल्लाह क्रिएट करता है। और अब आइए असली जवाब के पास, क्या नथिंग कभी समथिंग को बना सकता है? अगर कोई बोलता है यूनिवर्स खुद ब खुद बन गई, तो सिंपल सवाल, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो कैसे क्रिएट हो सकती है? अब आओ कुरान की तरफ। अल्लाह सूरे इखलास में सीधे सीधे फरमाता है, बोलो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद है, सब उस पर डिपेंड करते हैं और अल्लाह किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है, और कोई भी अल्लाह के बराबर या जैसा या कंपैरेबल ही नहीं। और अल्लाह ने जगह जगह कुरान में ये बता दिया, अल्लाह जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। तो सवाल था अल्लाह कैसा है? तो जवाब है अल्लाह जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। हम अल्लाह को क्रिएशन के जैसा इमेजिन ही नहीं कर सकते। और अहद का मतलब सिर्फ वन ही नहीं, अहद का मतलब यूनिक, सिंगल, नो पार्टनर, नो कॉपी, नो डिवीजन। और समद का मतलब जो सबको चाहिए लेकिन उसको किसी की जरूरत नहीं, वो इटर्नल है, एवरलास्टिंग, सेल्फ सफिशिएंट, द मास्टर, हमेशा से था और हमेशा रहने वाला। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, नींद चाहिए, चैन चाहिए, चार्जिंग चाहिए, लेकिन अल्लाह को कुछ भी नहीं। अब मैं समद को 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके दिलों में बिठा दूंगा। एग्जाम्पल 1, आप बिना पानी के मुश्किल से 3 दिन रह पाओगे। एग्जाम्पल 2, आप बिना नींद के 2 दिन में टूट जाओगे। एग्जाम्पल 3, आप बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। हमारे ज़रूरतों की लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती और अल्लाह के ज़रूरतों की लिस्ट 0, कुछ नहीं, वो इनफाइनाइट पावर के साथ है। अब 1 मिनट अपनी सांस पे ध्यान दो। आप लगभग एक दिन में 1000 बार सांस लेते हो। आपका दिल लगभग 1 लाख बार धड़कता है। आपके दिमाग में अरबों सिग्नल्स चलते रहते हैं और आपको इसकी खबर ही नहीं। यानी आपका एग्जिस्ट करना ही आप के कंट्रोल में नहीं है, आपका ही आपको पता नहीं।
हम अल्लाह को कैसे समझ सकते हैं? मैं और आप फकीर हैं और अल्लाह समद है। और जब आप सजदे में जाते हो ना, तो आप सिर्फ जमीन को टच नहीं करते, आप अपनी अना को तोड़ते हो। हमारे प्यारे आका ने बताया कि बंदा अपने रब के करीब सबसे ज्यादा सजदे में होता है। सोचो दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया 450 करोड़ साल पुरानी है, गैलेक्सीज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस है, और रब इतना करीम, इतना करीम, इतना करीम है, आपकी हर दुआ सुनता है, आपका हर आंसू को वैल्यू देता है। आज का मैसेज सिर्फ नॉलेज नहीं, ये एक इनविटेशन है। आप आज रात 30 सेकंड्स के लिए चुप हो जाओ और सिर्फ इतना बोलो, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। फिर आप अपने आप से पूछो, मैं किस चीज पे डिपेंड करता हूँ और अल्लाह को किस चीज की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो सिर्फ लाइक मत करो, इसको शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का ईमान भी इसी सवाल पे लरज रहा हो। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, बेल आइकॉन क्लिक करें। हम आगे चल के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस पे काम कर रहे हैं, उसको आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स सबको वीडियो भेज के इसको सब्सक्राइब करवाएं और जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अहद और अल्लाह समद लिखें। अल्लाह हमें अपनी मारिफत अता करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें।